Okay, so today's topic is synthesis of nanomaterials. Now, nanomaterials can be synthesized in different ways, but the category they have been categorized into two main aspects. One is called top-down, and the second one is called bottom-up. That means from top-down means from already existing system, you are reducing the dimension. That is top down. Top to down. Or bottom up matlab, you are building the whole nanomaterial atomistically, atom by atom. This is the difference between these two. So we will take examples of that. From top down, if you take example of top down, then इसका एक example है, we have discussed this in our previous class. Graphene. Graphene is one atomic layer of carbon. So it is a top-down method by which we can make graphene. We can produce graphene by a process called exfoliation. Exfoliation. Exfoliation is nothing but you take the graphite, take the, so let's say this is the graphite. It is consisting of lot of layers of carbon. तो यहाँ पे एक स्कॉच टेप लेके, so take a scotch tape, you paste it and then you remove it. स्कॉच टेप के ऊपर कुछ ग्राफाइटिक कार्बन लेयर्स चिपक जाते हैं. Take the scotch tape and this removes. यहाँ पे जो कार्बन लेयर चिपक गए, there are few layers of carbon atom. अभी you can see that how many layers? Is it 100 layer, 200 layer, 300 layer? The question, answer to your question is, if the number of layers is more than 10, then you cannot call it as graphene. The carbon layers has to be less than 10 for it to be retaining the graphene properties. 10 से ज़्यादा हो गया, ये on an average, ऐसा नहीं कि 10 है, वो मतलब the point is one monolayer, एक atomic layer को हम लोग graphene बोलते हैं. honeycomb structure, एक atomic layer को हम graphene बोलते हैं, one monolayer, 1 ml और al atomic layer. This is called graphene. तो ये graphene की जो property है वो exist करती है 2, 3, 4, 5 few layers है. लेकिन उसके बाद after a certain point of time the graphene property it is no longer existing and the graphitic property comes into the picture. So this is a top-down approach. From a whole graphitic layer, we are taking out few layers of graphene. Graphite. हाँ, from graphite, right? अच्छा, so ये जो graphene layer we have is a process of mechanical synthesis भी बोल सकते हो because there is no chemical involved here. Very simple synthesis. अच्छा, ये जो graphitic layers बना, they are basically two-dimensional. इसमें confinement is of one dimension. These are 2D material. ठीक है. किसी भी मटेरियल के पीछे ये ईन लग गया ना, तो इसका मतलब 2D मटेरियल के बारे में लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आज एक बहुत मटेरियल चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं MZ, metal halide in a 2D material. X stands for the halide. MZ. Then you have heard about silicon. Siliconene. This is a two-dimensional version of silicon. Germanium. ठीक है. Phosphorine.
फॉस्फोरस का वन डायमेंशनल लेयर, गोल्डीन, पॉलीमर्स में चले जाओ तो स्टैनिन। तो दिस इन वर्ड इज इम्पोर्टेंट। इन, जब भी किसी विषय के पीछे इन लगता है हम उसका 2 डायमेंशनल वर्जन को मीन कर रहे हैं, राइट। So this is one of the ways of so X using the Scotch tape is one way of forming graphene, right? ग्राफीन का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे एल्कीन से एल्केन होता है केमिस्ट्री में, उसी तरह से ग्राफीन से we can make, if you add hydrogen to it, ग्राफीन के साथ हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होगा, एल्कीन से एल्केन बना तो ग्राफीन से बनेगा ग्राफीन, right? आजकल के कॉन्टेक्स्ट में हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, तो दिस इज अ वे बाय विच वी कैन स्टोर हाइड्रोजन, राइट। सो ग्राफीन इज अ मेथड बाय विच हाइड्रोजन स्टोरेज कैन बी पॉसिबल। एनर्जी की कोई हो यहाँ पे, एनर्जी इंजीनियरिंग की कोई हो, हाइड्रोजन स्टोरेज इज पॉसिबल in the case of graphene to graphene conversion. So these are all 2D materials, right? So we are now focusing on top down. Another way by which we can make graphene is in the form of an oxide. This is called graphene oxide. GO. Or in short, RGO. RGO stands for reduced graphene oxide. इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस टू सुपर कैपेसिटर एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट। तो इसका जो प्रोसेस है दैट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच वी can make reduced graphene oxide. There is a name to it. There are certain chemicals. I'm not going into the details, but you can search. It's called the Hammers method. Hammers method. जिससे graphene oxide produce हो सकता है. Right? So कौन से method we have studied till now? One of them is तो स्कॉच टेप से ग्राफीन बनाना, और दूसरा है हाँ दूसरा ऑक्साइड। मतलब मेथड क्या है, हमर्स मेथड से केमिकल मेथड, हाँ, और 2 डायमेंशनल मटेरियल उससे बनता है, राइट। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेट्स कम टू द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब एकदम नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। So we are basically dealing with few atoms. हम लोग कुछ एटम्स के साथ डील करते हैं। एटम्स को जोड़ जोड़ के हम लोग एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज बॉटम अप, ठीक है। उसका जो एक एग्जांपल है, तो लेट्स ऐड bottom up method। इसमें जो अप्रोच यूज हो रहा है दैट इज द एटमिस्टिक अप्रोच। एटम टू एटम, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है दैट इज कॉल्ड एपिटैक्सियल ग्रुप। एपिटैक्सी का एपिटैक्सियल ग्रोथ, एपिटैक्सी का मतलब है, एक वर्ड में अगर तुम जानना चाहो तो इट मीन्स crystal
ऑलरेडी एक क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग एक क्रिस्टल और दे रहे हैं। और एक क्रिस्टल का मतलब क्या होगा? बेसिक फिजिक्स में जो लोगों ने क्रिस्टल पढ़ा है ना, व्हाट इज एक्चुअली क्रिस्टल? इट्स एक पीरियोडिक एटॉमिक अरेंजमेंट, राइट? क्रिस्टल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन क्रिस्टल बाय इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. वन इज लैटिस, दूसरा है basis. ठीक है. व्हाट इज अ लैटिस? लैटिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस. यहाँ पे अभी तक कोई एटम नहीं है, मतलब एक टू डायमेंशनली हम लोग जैसे मैट्रिक्स पॉइंट्स सजा लेते हैं. कैन बी एनीथिंग, दिस पॉइंट्स इन स्पेस. ठीक है, मतलब ये वाला रूम है, इट्स अ थ्री डायमेंशनल रूम. हर एक 2 नैनोमीटर और 2 सेंटीमीटर एक्स वाई जेड पे वी हैव पुट सम पॉइंट्स. दिस इज अ लैटिस, राइट? नाउ हर एक पॉइंट में if we provide some unit cell, this is right, हम लोग unit cell भी बोलते हैं, we provide a similar sort of atomic combination. ठीक है, वो एक single atom भी हो सकता है और it could have been a combination of 1 or 2 atoms, but the point is on every lattice it should be same चीज. So यहाँ पे मान लो ये एक combination of atom के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, which is मान लो ए एंड बी एटम. बड़ा वाला मान लो ए है और जो छोटा वाला है वो मान लो है बी. राइट? तो हर एक जगह पे दिस ए बी कॉम्बिनेशन इज सेम. तो ये बन गया एक क्रिस्टल, राइट? तो ऐसा इस केस में सिंस वी आर डीलिंग विद 2D मटेरियल्स, वी आर एज्यूमिंग दैट एक ऐसा क्रिस्टल 2 डायमेंशनली ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है, क्योंकि किसी भी 2 डायमेंशनल मटेरियल को ग्रो करने के लिए उसको एक बेस चाहिए होता है. तो किसके ऊपर वो ग्रो करेगा? तो वी एज्यूम दैट देयर इज अ सर्टेन बेस जो कि ऑलरेडी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और इसको हम लोग केसेस में बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर 2D मटेरियल ग्रो करता है. राइट? एंड इट इज इन अ क्रिस्टलाइन स्टेट. सिविल के कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जरूर तुम लोग जानते हो किसको बोलते हैं? CTE. ये गर्मी में जो लॉक्स है ये लूज हो जाते हैं, क्यों? या फिर कुछ पता होता है ना, द मेटल्स में देयर इज अ चेंज इन डायमेंशन. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है. हाँ, मतलब अगर किसी भी दो एटम को या 2 टाइप के मटेरियल को हम लोग एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं. जोड़ना मतलब क्या है? मतलब एटॉमिक बॉन्ड्स, राइट? तो ऐसा नहीं कि कोई भी एटम किसी के साथ एटॉमिक बॉन्ड कर लेगा. इसके सर्टेन कंडीशंस है, राइट? कंडीशंस है कि विद टेम्परेचर दोनों का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने से कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल बढ़ता है, राइट? दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. दोनों का सेम होना चाहिए, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं. होता है, लेकिन क्या होता है कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस. क्यों ऐसे स्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज मान लो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. इसको तुम लोग सोचो कि ऐसे निकलिए. ठीक है,
ऐसा एक मटेरियल है, ये बेस है तुम्हारा, सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हम जो मटेरियल डिपॉजिट करना चाहते हैं वो ऐसा है। ठीक है, इसके ऊपर डिपॉजिट करना है, एक एटम को लेते हैं मान लो, तो ये क्या होगा, इट हैज टू एक्सपैंड, राइट। इसको अगर यहाँ पे बैठना है तो इसके साथ जो है वो तो बहुत छोटा है ये, ठीक, चारों तरफ के जो इसके जो एटम्स हैं देयर आर मच स्मॉलर डिस्टेंस, सो क्या होता है कि इट हैज टू एक्सपैंड टू बी एबल टू सिट ऑन द एटम्स, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि डायमेंशंस आर नॉट सेम। ये जो डिस्टेंस में जो बोल रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड लैटिस कांस्टेंट्स। लैटिस कांस्टेंट्स लैटिस कांस्टेंट्स क्या है, 3 डायमेंशन x, y एंड z, a b c और 3 एंगल। तो क्यूब, कंसीडर अ क्यूब, क्यूब है ऐसे, क्यूब के चारों तरफ एटम्स हैं, कितने एटम्स है टोटल, अगर हर एक कॉर्नर में है तो कितने एटम्स हैं टोटल, 8 एटम्स। ऐसे करके बहुत सारे क्यूब्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बोलो, एक एटम कितने क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि दिस 3 डायमेंशनली चार तरफ अगर क्यूब ही क्यूब है, क्यूब, एक जो कॉर्नर में जो एक एटम है वो कितने क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, ठीक से सोच के बोलो। एक क्यूब 8, सो दैट इज वाई एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है, एक, और तुम तो जानते हो, एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/8, राइट, 1/8। तो 8 कॉर्नर्स है, 8 into 1/8 is equal to 1, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूब इज 1, ठीक है। तो ये जो क्यूब है इसको हम लोग इसके लैटिस कांस्टेंट्स क्या क्या है, इसके लैटिस कांस्टेंट्स हैं दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस x, y और z में। तो ये मान लो है c, दिस इज a एंड दिस इज b, और जो एंगल है, तो क्यूब के केस में a is equal to b is equal to c, and if I take the angle as alpha, beta and gamma, हाँ, so वो orthogonal lattice beta is equal to gamma is equal to 90. ठीक है, so this is a cubic system. मेटालिक सिस्टम अगर हम देखें तो मेटल्स को खास करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पे। सेवन क्रिस्टल क्यूबिक, हर्षवर्धन बोलो तो साधो के नाम, क्यूबिक, हाँ, नेक्स्ट सेकंड, अच्छा क्यूबिक के बाद रेक्टेंगुलर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक सेकंड, 7 से आते हैं ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक,
orthorhombic. और 4 is rhombohedral. या फिर कौन सा rhombohedral होगा? ये पहले वाला orthorhombic होगा ना? हाँ, ये होगा orthorhombic. ये होगा rhombohedral. तो ये 4 क्रिस्टल सिस्टम्स है और इसके ना कुछ ऑल्टरेशंस हैं. जैसे क्यूबिक तुम लोग बोलते हो तो देयर आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक. एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक है सिंपल क्यूबिक, एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक है वो वाला, ठीक है, और वो वाला मतलब तो नहीं है. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एक क्यूब है ऐसा, इसके 8 एटम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. इसके बीच और एक एटम आ रहा है, तो वन इज एट द सेंटर, ठीक है. स्टेनलेस स्टील, राइट. स्टेनलेस स्टील इज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल. स्टील का क्या स्पेलिंग है? STEL या STEL? STEL, राइट. वो वाला स्टील दूसरा होगा, ठीक है. Stainless steel is basically it is a very most used structural material, जो कि एक alloy है आयरन का और मेनली कार्बन का, और इसमें और कुछ एडिशंस होते हैं जैसे क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू चेंज द फेज एंड corrosion resistance के लिए. तो बेसिकली आयरन एंड कार्बन का इसके भी डिफरेंट फेज होते हैं बेस्ड अपॉन द कार्बन कॉम्पोजिशन